It was a dream दोस्तों one day to make this video and today it became possible. Hola a todos, bienvenidos este video en como yo compartiendo con todos ustedes como yo aprendiendo o aprendí español en más o menos 2 o 3 meses. So it was a time 7 years ago that I didn't even have the confidence to stand on a stage and or even like talk to 10 people in front of me. I didn't even have that confidence. And मुझे पता ही नहीं था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि I will have confidence कि मैं इंग्लिश तो छोड़ो कि शायद किसी से स्पेनिश पे ऐसे बात कर पाऊंगा. It was a dream and it became possible with 2 to 3 months of हार्ड वर्क. मैंने 2-3 years में बिल्कुल भी स्पेनिश नहीं पढ़ी थी. सिर्फ एक सेमेस्टर इन कॉलेज मैंने पढ़ा था, वो भी बिल्कुल बेसिक, जिसने मुझे बिल्कुल हेल्प नहीं की. All the effort that I did in the last 3 months changed everything, and I'll be sharing how अगर आप in your study abroad journey, if you're trying to learn Spanish, German or Italian, wherever you're going, because Italy, Germany or maybe Mexico or Spain, these are very common study abroad destinations जहाँ पे students think कि यार language barrier is kind of difficult, but breaking all the bars, I will tell you कि it is not a big deal. अगर आप चाहो, हिम्मत मत हारो, you can actually learn a language. And let's get into the nitty gritty details. सबसे पहले तो यार why I learned a new language, मैंने क्यों सीखी, मुझे क्या ज़रूरत थी, because I am living in America. I barely need Spanish in America except if I'm going to Puerto Rico or maybe Miami. So otherwise I don't need Spanish anywhere else, but I learned it because मुझे travel करना बहुत पसंद है. And when I was planning to go to Mexico 2 to 3 months in advance, I was like, let's get into practice. रोज करूँगा, शायद एक दिन हो पाए. And I was surprised कि it became possible. And Mexico में so many people were appreciating me, like agradeciendo in Spanish they said. So they were appreciating me about my Spanish and I was so impressed कि यार मुझे तो सिर्फ बेसिक आती है, क्यों इतना appreciate कर रहे हैं, because I was at a level that many tourists were never. So वो तो एक दो वर्ड बोलते थे, मैंने उनसे conversation hold की with every taxi driver I was sitting with, every restaurant. I tried to do everything over there in Spanish. Even if someone knew English, मैं start ही Spanish से करता था and everyone was surprised. So main reason ये है कि I love traveling and exploring different culture. और जब मैं एक completely new culture in a new movie, in a new country या फिर in a whole new world explore करता हूँ, I feel like कि मैं एक नई दुनिया देख रहा हूँ, नई दुनिया explore कर रहा हूँ. I'm learning completely new which I cannot learn just through my English skills. तो मैंने सोचा कि अब तो सीखनी ही पड़ेगी. और जब मैं सीख रहा था, let me share some of the interesting similarities I noticed between हिंदी एंड स्पेनिश. तो पहला वर्ड तू, हर एक को पता है तू इज हिंदी में भी तू है, पंजाबी में भी तू है और स्पेनिश में भी तू है. नंबर 2 के. तो हम कई बार बोलते हैं हिंदी में, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बताने गया था कि. सो इट इज़ वेरी कॉमन एंड सिमिलरली यहाँ पे स्पेनिश में भी इट इज़ कॉमन फॉर व्हाट एंड दैट. हिंदी में ज़्यादा दैट के लिए यूज़ होता है एंड इट इज़ वेरी वेरी कॉमन इन स्पेनिश. नंबर 3 मुझे बताया कि, और इन स्पेनिश me digo que. सो इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर एंड मुझे इस तरीके से मैं कभी भूलता नहीं हूँ. जो वर्ड सिमिलर होते हैं इट जस्ट स्टेज इन माई माइंड एंड आई एम नेवर एबल टू फॉरगेट एज आई प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस की अभी हम बाद में बात करेंगे. नंबर 4 मुझे दिया, विच इज इन स्पेनिश इज me dio. सो इन द पास्ट टेंस इसे रेफर किया जा सकता है. मुझे दिया था इन हिंदी me dio. And Rona is Yorona. क्या हाल, के ताल, वेरी सिमिलर. नेक्स्ट कमीसा, कमीज. ये वर्ड्स काफ़ी सिमिलर है बिकॉज अरबिक का काफ़ी इन्फ्लुएंस था इन स्पेन. अगर आप स्पेन जाओगे वहाँ पे काफ़ी अरब इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको दिख जाएगा. सो दैट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अरबिक इज इन स्पेनिश एंड इट इज इन आवर हिंदी लैंग्वेज टू. नेक्स्ट मेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इट इज मेसा इन स्पेनिश. देन गर्दन. जब गला खराब होता था इंडिया में, डॉक्टर कहता था कि गरारे करो, वैसे ही गरगांता is in Spanish. Un poco dolor en mi garganta, so I have little bit pain in my throat. और गर्दन, ऐसे वर्ड्स मुझे हमेशा याद रहते हैं because I always associate an example sentence with the word. And last ruido और रौला. हम पंजाबी बोलते हैं रौला पै गया, नॉइज़ बहुत है यहाँ पे. और वैसे ही
स्पेनिश में ruido, mucho ruido, so lot of noise. So ये काफ़ी patterns मुझे दिखते हैं और ये words पे कभी भूल नहीं पाता चाह कर भी. And even English words are so similar, like inspiration is inspiración, motivation is motivación. Now let me tell you कि in my Spanish journey I did a lot of mistakes, पर जब मुझे एक strategy मिल गई ना, when I stuck to it every single day, वो स्ट्रैटेजी से आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो. आई रिपीट, चाहे जर्मन हो, इटालियन हो, स्पेनिश हो, और मे बी you're trying to learn French, in whichever country you are, it will become easy, and I promise. तो start करते हैं. There are 4 aspects to learning any language, which is reading, listening, speaking and writing. I think the most important among these 4 are first 3: reading, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. बिकॉज राइटिंग तो आप कर ही लोगे अगर आप ये 3 चीज़ें करते हो, तो राइटिंग ऑटोमेटिकली बिकम्स ईजी, बिकॉज क्योंकि आजकल ऑटो करेक्ट है टाइपिंग पे, तो राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनी जितनी फर्स्ट 3 है. सो फर्स्ट 3 को टारगेट करने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला यूज़ किया, और सबसे पहला स्टेप तो काफ़ी लोग चूज़ करते हैं डुओलिंगो पे, पर मैंने पर्सनली डुओलिंगो का राउट बिल्कुल यूज़ नहीं किया, बिकॉज आई थॉट कि यार डुओलिंगो के लिए काफ़ी स्क्रीन टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और जितनी मैं चीज़ें सीख रहा था बहुत रिपीट हो रही थी. आई वॉज स्पेंडिंग मोर टाइम एज कम्पेयर टू आउटपुट आई गॉट थ्रू डुओलिंगो ऐप. तो मैंने इन 3 स्ट्रैटेजी के लिए, वंस अगेन लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, इनके लिए मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ की ऑफ लिसनिंग. सबसे पहले लिसनिंग के लिए मैंने हर रोज़ स्पेनिश में पॉडकास्ट सुनने शुरू कर दिए. द बिगनर वंस, अगर आप स्पॉटिफाई पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, देर आर मैनी स्पेनिश बिगनर फ्रेंडली पॉडकास्ट. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ. जैसे वन ऑफ माई फेवरेट इज चिल स्पेनिश लिसनिंग बाय जो, एंड अदर सिंपल स्पेनिश पॉडकास्ट आपको दिख जाएंगे जो कि आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताते हैं ऑफ वॉट एवर दे आर सेइंग. सो इससे आपकी ईयर्स, इवन दो यू माइट नॉट बी अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग एवरीथिंग, आपके ईयर्स बिकम इन द जोन ऑफ बिकमिंग रेडी फॉर स्पेनिश. और इससे आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो. एक लाइन आप स्पेनिश में सुन रहे हो, एक लाइन आप इंग्लिश में सुन रहे हो, सो योर ईयर्स गेट रेडी एंड देन यू कैन गो वन स्टेप अबव इट. एक बार आपने बेसिक सीख लिया, चाहे आप यूट्यूब पे सीखो बेसिक वर्ड्स हियर एंड देयर थ्रू पॉडकास्ट और बाय वाचिंग वीडियोस. देयर इज ऑल्सो यूडेमी स्पेनिश कोर्स विच इज़ फॉर 500 रुपीज़. अगर आप उससे स्टार्ट करना चाहते हो, वो भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है. तो मैंने स्पेनिश कि ये सोर्सेज फ्री यूट्यूब, यूडेमी एंड पॉडकास्ट यूज़ किए, सो दैट माई लेवल 1 इज क्लियर दैट आई कैन हैव लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग. मंथ्स, वीक्स, डेज, नंबर्स, ये सब सीखने के लिए आई जस्ट डिड गूगल सर्च एंड जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट थ्रू फर्स्ट रीडिंग, एंड देन मैंने उनके सॉन्ग्स भी सुने. अगर आप यूट्यूब पे सॉन्ग सुनोगे ऑफ ABCD, आ बे से दे, जो स्पेनिश में है, सिमिलरली नंबर्स 1 2 3, ये सारे सॉन्ग सुनोगे, आपके भी मन में एक धुन बन जाएगी. जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 हिंदी के भी नंबर्स की धुन बनाते हैं, वो आपकी भी धुन बन जाएगी फॉर दीज बेसिक थिंग्स. नाउ नंबर 2 इज रीडिंग, विच बिकम्स वेरी इजी. काफ़ी लोग कहते हैं कि यार आपको रीडिंग के लिए 1 पेज हर रोज़ पढ़ना चाहिए, दैट यू शुड रीड अ पेज एवरी डे. जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं, सिमिलरली और स्पेनिश, रीड अ पेज इन स्पेनिश एवरी डे. नो, आई डोंट बिलीव इन दैट. मैं अपने आप को फोर्स करता हूँ टू रीड, नॉट बाय मेकिंग अ रिमाइंडर कि यार आज 1 पेज पढ़ना है, बट देयर इज एन ईजियर राउट दैट आई चोज, दैट इज टू कन्वर्ट माई होल फोन इन स्पेनिश. पिछले 3 महीने से माई इंटायर फोन इज इन स्पेनिश. तो अगर मैं अपना होम पेज भी आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे होम पेज पे दिखाता है मर्कोलेस CS दे दिसंबर, मंथ का नाम, डेज, एवरीथिंग इट टेल्स इन स्पेनिश, और वेदर तक स्पेनिश में बताता है. सो एटलीस्ट अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, पहली चीज़ मायोरमेंटे देसियांदो, मतलब नो सन मोस्टली टुडे. सो अगर कभी आप टैक्सी पे बैठते हो, एटलीस्ट यू हैव द पोटेंशियल कि आप नंबर्स, वेदर, टाइम, डेट के बारे में बात कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल टुडे माई वेदर स्क्रीन इज सेइंग मायोरमेंटे देस्पेहादो, दैट मीन्स मोस्टली टुडे इज क्लियर. तो ये छोटे छोटे वर्ड्स से यू कैन गेट स्टार्टेड. अगर आप अपना पूरा फ़ोन you're converting into Spanish, remember to have the app called Spanish Dictionary, because उससे सारे words will be offline on your phone. Google Translate भी आप offline कर सकते हो, but that's not always correct. Spanish Dictionary से अगर मेरे फ़ोन पे कभी कभी क्या होता है, एक बार क्या हुआ, टेस्ला में दरवाज़ा खुला रह गया था. मुझे अचानक से टेस्ला ऐप नोटिफाई करती है दैट समथिंग लाइक द गेट इन स्पेनिश रिटर्न की गेट ऑफ कंडक्टर साइड. मुझे समझ आ गया थोड़ा थोड़ा, पूरा अच्छे समझ नहीं आया, तो फटाफट एक वर्ड समझ नहीं आ रहा था, स्पेनिश डिक्शनरी फटाफट खोली, ट्रांसलेट किया दैट वर्ड, एंड आई वॉज एबल टू मेक सेंस कि हाँ यार एक दरवाज़ा रह गया. सो ऑलवेज योर फोन विल थ्रो एट यू सम वर्ड्स जो आपको पता नहीं है, पर यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. तो अगर आप इस चैलेंज के लिए रेडी हो, आई प्रॉमिस कि आपको रोज़ 1 पेज
रीड करने की आदत लगानी नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो भी आप ऐप्स खोल रहे हो, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर देयर इज लिटिल बिट ऑफ स्पेनिश दैट यू गोना यूज एवरी डे, और वो आप कभी चाह कर भी भूल नहीं पाओगे. एंड इसी के साथ नाउ नेक्स्ट स्टेप, यू कैन गो वन मोर स्टेप एडवांस दिस. आपने फ़ोन में सिरी ऐप को, और इवन इफ़ यू हैव अलेक्सा, गूगल होम, व्हाटएवर यू हैव, उसको भी स्पेनिश में करो, ताकि आप एटलीस्ट कुछ वर्ड्स तो रोज स्पेनिश बोल रहे हो. सिरी से पूछ रहे हो, हे सिरी como estás, मतलब अब थोड़ा बहुत स्पेनिश तो बोल रहे हो. सो विद दैट यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग हो गया, पॉडकास्ट एवरी डे. आई हैव बिन लिसनिंग टू जो स्पेनिश एवरी डे, उसके 150 एपिसोड्स है. दे आर माई फेवरेट बिकॉज दे आर 4 minutes ईच. हर रोज़ जब मैं कार ड्राइव कर रहा होता हूँ, हर रोज़ सुनता हूँ. और फ़ोन रीड करने के लिए पूरा फ़ोन ही स्पेनिश में है, तो क्या प्रॉब्लम है. नाउ नंबर 3 स्टेप विच बिकम्स बिट चैलेंजिंग, it is about speaking. So speaking के लिए I have a formula for you as well. So speaking के लिए मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं अपनी कार पे एक पॉडकास्ट सुन रहा होता हूँ स्पेनिश में, 4 minutes का होता है, I listen to it and speak the same again so that मुझे सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है. यू स्पीक अगैन ऑन योर ओन, फिक्स योर मिस्टेक्स. जब आप खुद लाउडली बोल रहे होते हो, नॉट इन साइड योर हार्ट बट लाउडली, विदाउट सेइंग you gain confidence. अपने mind में thoughts clear करो. Think about which word you're gonna speak and then speak it rather than saying no. Do not say that at all. Just have the clear thought, then speak it. और आप जितना आप repeat करोगे, same चीज़ सुनी, same चीज़ repeat करेंगे. You can listen to a podcast in Spanish जो मैं आपको recommend कर रहा हूँ. They will be all in description below. एक लाइन सुनो, pause, repeat the same line. So एक एक podcast को मैं 10-10 बार सुनता था because my ears were not ready to adapt it. तो मुझे 10 बार with subtitles सुनना पड़ा with podcast. घर जाके I used to read the whole thing ताकि I can understand. Oh, this word is this. तो ये effort आपको डालनी पड़ेगी. Now this done, you can go to one more level by talking to random people in Spanish. And do you know how that's possible? There is an app that's not sponsored again, जो जिससे मैं खुद रोज़, मेरा schedule है कि किसी अपने फ्रेंड से बात करना. मैंने अभी एक फ्रेंड फिक्स किया हुआ है that I found with the app called Tandem. So now Tandem is the app where many people want to learn English, Spanish, Italian, whatsoever. यहाँ पे काफ़ी लोग इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं. If you are fluent in English, you can teach them English and learn Spanish or whatever language you want to. German, जो भी आपको लोग मिलेंगे, आप अपने फॉर्म भरो. You will find people who want to learn English from you, and you can learn German, Spanish or whatever they know from them. So this way I met many people on this app. काफ़ी लड़कियाँ भी हैं. लड़कियों से मतलब बी केयरफुल बिकॉज यहाँ पे भी स्कैम हो सकता है. बिकॉज लाइक डू नॉट बी सिंपिंग हियर आइदर. सो यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से बात की, और बात करने के टाइम मैंने डिसाइड किया आई एम गोना चूज अ पर्सन विद न्यूट्रल स्पेनिश एक्सेंट. जैसे कि नो डिसरिस्पेक्ट बट आई लव एक्सेंट, स्पेनिश एक्सेंट ऑफ एवरी वन. बट आई थिंक फॉर मी पर्सनली द ईजिएस्ट वन टू अंडरस्टैंड वॉज फ्रॉम एक्वाडोर, मेक्सिको, Colombia. So these places it was very easy. Guadalajara, Guatemala, Honduras. So ये सारे I felt like these are bit neutral and easy for my ears to get adapt to. तो इस कारण मैंने इन वाले लोगों से बात करना शुरू की, and then plan to talk to only one person later on. I talk to him every day, try to help him in English little bit and try to learn Spanish from him. और जब आप बात करते हो, you have to tell them कि हम same conversation. So whenever I try to talk to someone through this app, हमने WhatsApp नंबर एक्सचेंज किया हुआ है, उनसे बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि हमारे रूल्स ये हैं कि हम same conversation, we will do the same conversation first in Spanish or English and do the same in other language. Spanish से start किया था तो English पे, English से start किया था Spanish पे. So that way you are, so let's say I want to learn Spanish, मैं सिर्फ Spanish बोलूँगा, he wants to learn English, he will just speak English. So I fixed his or her English in this journey and the other person fixes my Spanish whenever I'm speaking. तो इस way से with communication it is clear. और हम एक conversation पूरी इंग्लिश में करते हैं, एक कॉन्वर्सेशन पूरी स्पेनिश में, सो दैट वी आर हेल्पिंग ईच अदर एज वेल. और सेम टॉपिक पे सम लेट्स से अबाउट पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और दिस वे यू आर एबल टू प्रैक्टिस वेल. एंड दिस ऐप इज कम्प्लीटली फ्री. इसमें पेड वर्जन भी है, मैंने वो नहीं लिया था. सो एवरीथिंग व्हाट आई एम शेयरिंग टुडे इज वाज कम्प्लीटली फ्री. एंड लास्ट इज राइटिंग. तो मुझे लगता है राइटिंग विल कम ऑटोमेटिकली. आपको राइटिंग से फर्स्ट ऑफ ऑल हिचकिचाना नहीं है. व्हेनेवर यू आर थिंकिंग ऑफ अ थॉट, आप नेचुरली कोशिश करो कि अगर वो स्पेनिश में आता तो कैसे आता. ट्राई टू स्टार्ट फोर्सिंग योर सेल्फ टू थिंक इन स्पेनिश एज वेल.
whenever you're texting someone to think the same sentence in Spanish as well, put pressure on your brain so that next time you want to talk about same thing वो fluently आ भी जाएगा. Now in the end some basic tips that I want to share कि जब आप Spanish सीख रहे हो या फिर कोई भी language सीख रहे हो, never try to learn every single word. ऐसा मत सोचो कि जैसे कि in English we say what is your name, but अगर आप Spanish को word by word translate करोगे it will be ¿qué es tu nombre? But it doesn't work like that. It is ¿cuál es tu nombre? Which is like which is your name? So English में जो चीज़ें और Spanish में चीज़ें it doesn't make sense direct word to word. तो आपको करना है you need to target learning sentences as compared to words. आपको हर word का context पता होना चाहिए. You should know the context of each word और connect करो as a story. So that's why by listening to podcasts, which is a story that I have referred, my favorite is Chill Spanish Listening, which you can find on YouTube with subtitles or Spotify without subtitles. So इस तरीके से you are reading and learning the words with the context. For example, cortarse el pelo, the haircut लेना, cortarse cutting is context of hair. क्या पता cutting scissor cutting में ये context चला ही ना. So you don't know which words go with which context. So you have to learn the whole sentence. एक पूरे sentence को याद रखो as compared to एक word. So that will be my best advice. And with that being said, I wish you all the best for your language journey, चाहे वो German हो, Spanish, Italian. I'll be honest, if you are thinking of studying abroad in Italy, Germany, or anywhere where Spanish is spoken, don't think language is a barrier. It's just about 2 to 3 months. Time will change everything. Within few months, you will adapt. मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. If you continue to put effort every single day with these strategies. With that being said, I wish you all the best and thank you so much for watching. I just wanna be your Superman. Come fly with me, just take my